Assalamu alaikum, students. Anis Hussain is here once again with an informative session to guide you regarding the admission process of one of Pakistan's leading universities. Today, we have invited a special guest who will walk you through the eligibility criteria, admission requirements, and the complete admission process at FAST University. Following the discussion, we will have a question and answer session where you can post your questions in the comment section and we will address them during the session. We are honored to have with us the Senior Manager Academics at FAST University, Mr. Abdul Saeed. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you so much, sir, for taking the time out of your busy schedule to join us today and guide our students. Without further ado, sir, the floor is yours. Assalamu alaikum. This is Abdul Saeed, Senior Manager Academics at FAST NU Karachi. So, welcome all students to the live session at Anis Hussain regarding FAST University. I would like to give you brief information about the admission, its process, and all the other procedures which you need to follow during the admission process. First of all, our admissions have been started. Our admissions deadline is 26th of June, which is next Friday. So all students who are willing to apply or applying must complete the admission formalities by 26th of June. So we have basically three different faculties. In these three faculties, we are offering different programs. So let me inform you about the degree programs which we are offering this year. In computing faculty, we are offering BS Computer Science, BS Software Engineering, BS Artificial Intelligence, BS Cybersecurity, and BS Data Science. This year, we have introduced another stream in computer science. It is a specialization which is called Techno-Entrepreneurship. This is a new stream which we have offered in computer science domain. In electrical engineering program, we are offering electrical engineering and computer engineering. In electrical engineering, we are offering a new stream which is electronic vehicle. This is a very new stream which has been offered by FAST NU. In management science program, in management science faculty, we are offering two different programs. That is BS Business Analytics, and the second one is BS Financial Technology. So for all these programs, we have different eligibility criteria. For computing and engineering program, we have same eligibility criteria almost. You need to have intermediate pre-engineering or computer science, or you must have 50% marks in intermediate for computer science and 60% marks in intermediate for engineering programs. For matriculation or O level, you must have 60% program in both programs. For management science degree programs, you need to have 50% in intermediate or A level and 60% in matriculation or O level. In business stream, students from any background can apply. So whether you are a pre-medical student, whether you are a pre-engineering student, whether you are a general science student, all of you can apply in the field of management sciences. For computing especially, those who are from pre-medical background, they must have studied mathematics before applying at FAST NU. Like additional math is a subject which you need to complete before applying for computer science at FAST NU. Our procedure is simple to apply. You just go and visit admissions.nu.edu.pk. You have to create your profile and fill the form. In the form, we have different, options. You can opt for more than one degree program, like you can opt for 5 degree programs. We have similar tests. We have only one test for computing and engineering. And if you are applying for management science program, you need to appear in separate test. Likewise, you can apply for more than one campuses. Currently, we are having 6 campuses across the country. One is in Karachi, Islamabad, Lahore, Faisalabad, Multan, and Peshawar. So you can apply for any campus, and in one form you can apply for 3 campuses.
your selection will be based on the priority which you set in the admission form and the merit score if you are meeting for that specific campus and specific degree program. How merit is prepared? There is a simple formula. You have 10% of your matriculation or intermediate or matriculation or O-level marks will be calculated, and 40% of your intermediate part 1 marks will be calculated towards merit calculation. Remaining 50% is the score which you secure in admission test. That 50% of the score will be counted towards merit calculation. So this is the criteria of merit. Regarding admission test is purely computer based and it is consistent of multiple choice questions. So each like for example, for electrical engineering and computer science, there are 4 sections. One is advanced math, the second one is basic math, third one is English, and fourth one is IQ. 50% of the test comprising is of advanced math, which you have done in A level or intermediate, and 20% of the test comprising the mathematics, which you have completed in O level or matriculation. The remaining percentages are of English and IQ. And in management science review program, there is 50% weightage of basic math, which you have done in matriculation. And remaining portions are essay writing, English, and IQ. So these are the test components. In our admission test, there is negative marking also. If you choose the wrong answer, your marks will be deducted. You need to be very careful while attempting the test. Do not try to attempt 100% questions if you are not sure. If you are sure, you can attempt maximum of the questions. So at the end of the test, you will able to know how much you have attempted and what are the number of correct answers. That would not be your final merit score. It will be calculated later. So likewise, I have informed you the deadline. There are different financial aid and scholarship opportunities available at FastNU. The very comprehensive program which FAST is running is FAST's own financial aid program. For those students who cannot afford fee or struggling to submit the fee, they have to fill the online financial aid form which is available along with the admission form. Make sure you fill the form at that time. If you did not fill that online form of financial aid, then we cannot, entertain you after the admission. There are different scholarships. There are 2 merit-based scholarships. Like if you secure first 3 positions, top 3 position in intermediate board of any city, any board, you are eligible for 100% scholarship provided you clear our admission test. Likewise, if you secure top 3 position in our admission test, then you are eligible for 100% scholarship. So these scholarships are purely on merit and they are available for full 4 years. Apart from these merit-based scholarships, there are need-based scholarships which are offered from different organizations like Endowment Board, like Sindh Endowment Board, Balochistan Endowment Board, and Honiar scholarship from Punjab government. There are other scholarships like Orange Tree Foundation, like the Ehsan Trust, and the Citizen Foundation. There are many other scholarships from different software houses. Our alumni also offer a scholarship to the deserving students. So there are ample opportunities for needy, deserving students who cannot afford fee but are talented and are willing to take admission at FastNU. So you are more than welcome, beta. If you are talented, just apply and we will try to cater your needs, inshallah. So this is all the basic information which I have provided you regarding FastNU and the admission process. You must have many questions in your mind, so you are more than welcome to ask any question. I am available to answer all the questions.
Thank you, sir. Sir, Mohammed Bilal is asking that does FAST University offer seats on self-finance as other government universities? No, at FAST, admissions are purely on merit base. There is no self-finance fee. Sorry, there is no self-finance seat. If you are not meeting the merit score, so you cannot be admitted. All right, sir. As we're live on Zoom as well, receiving some questions over there. Can students from pre-medical backgrounds apply for computing or engineering programs? अच्छा, इसका आंसर मैंने वैसे अपने उसमें दे दिया था, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए इंटर में आपका मैथ्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने प्री मेडिकल बैकग्राउंड से इंटर किया है तो डायरेक्टली आप फास्ट में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको जो इंटरमीडिएट बोर्ड वाला जो मैथ होता है या ए लेवल वाला वो आपको करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आप, अगर आपने अभी इंटर किया है 2026 में जून में, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे हमारे पास एडमिशन के लिए। ठीक है, और जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सिर्फ दो कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या फिर जनरल साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। Sir, what is the CGPA based scholarship? At FAST, there is no CGPA based scholarship. However, we offer a token of appreciation like a cash reward to top 3 students at the end of every semester in every batch and in every degree program. So there are cash reward, but this is not called scholarship. Sir, can students apply through SAT scores? Yes, student can apply on the basis of 3 tests. Number one is FAST student test. The second one is SAT, and the third one is NET. NTS जिसे कहते हैं, आप NTS की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। And what SAT score is generally considered a competitive for admission? Oh, it is difficult to say about the scores because merit is calculated. इसका तरीकाकार ये है कि आपका जो भी सेट का स्कोर होगा उसकी हम परसेंटेज लेंगे 50%। उसकी एग्जाम्पल आसानी से मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपका 1200 स्कोर है, दैट इज 80% ऑफ सेट स्कोर। तो 80% का हम लेंगे 40%, यानी 40 मार्क्स। इसके अलावा जो 50% है वो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, वो मिला के आपका सेट का मेरिट स्कोर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने एडमिशन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं, सेट के लिए भी हम एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे। लेट से 85 कट ऑफ है, जो 85 से ऊपर जिनका मेरिट बनेगा सेट के बेसिस पे, मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं 85 वो ज़्यादा या कम हो सकता है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। And so can you guide regarding the merit? Someone is asking, what about merit list? Like how much merit will be increased this year if we compare last year's merit list? Merit has been increasing since last 4 or 5 years. सो कंपैरेटिवली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि पिछले साल कराची कैंपस में कंप्यूटर साइंस का जो स्कोर था वो 68 था, जिसमें हमने क्लोज किया। उससे पिछले साल 67 था, उससे पिछले साल 66 था। तो तकरीबन 1 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। वी डू नॉट सजेस्ट कि इस दफ़ा कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो इस वजह से मेरिट स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। All right. And so if someone wants to switch their field program after completing first semester, for instance, switching from BSCS to BS Cybersecurity, is it possible? After first semester, yes, it is possible, but there is a condition. You must be meeting the merit score of that degree program. जब आपने टेस्ट अभी देंगे, आप जैसे आप जुलाई में टेस्ट दे रहे हैं और आपने CS में एडमिशन ले लेता, तो एक सेमेस्टर गुजरने के बाद तो ले सकते हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। फिर 1 साल गुजरने के बाद फिर आपको दोबारा एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। I have completed a 3-year diploma in CIT. My third-year examinations are currently ongoing, and my second-year result has not been announced yet. I have already received my ECAT admit card.
Am I eligible to apply for cybersecurity at FAST based on my first year mark sheet, or do I need to wait for my second year result as well? अच्छा, वैसे डिप्लोमा 3 साल का होता है, लेकिन अभी जो आपने बताया आप ये कह रहे हैं कि शायद 4 इयर्स का डिप्लोमा है। नॉर्मली 4 इयर्स का डिप्लोमा नहीं होता। और अगर आपका डिप्लोमा 4 ईयर का है तो हमें थर्ड ईयर के मार्क्स चाहिए। यानी जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है जो आपने कंप्लीट कर ली है उसके मार्क्स चाहिए होंगे। और जब आपका ये डिप्लोमा हो जाएगा, इस डिप्लोमा की इक्विवेलेंस बनेगी आईबीसीसी से। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो इक्विवेलेंस भी हमें चाहिए। What will be the expected aggregate for BS AI in Karachi? वी कैन नॉट कमेंट एट दिस मोमेंट। मतलब वो 67 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो तकरीबन आप दिमाग में ये रखें 70 के आसपास। Hamza is sharing his first year and second year results and is asking how much does he have to score to get into FAST. So sir, आप I think aggregate formula जो है वो repeat कर दीजिए तो वो खुद अच्छा देखो calculate कर बेटा लेगा. हमजा, बात ये है कि तुम्हारा जो भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का स्कोर है, अगर तुमने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसका हम लेंगे 40%। लेट्स से कि तुम्हारा Sir, he has mentioned he has scored 83% in first year and 83% in तो FSC. 83% का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 33 मार्क्स तुम्हारे रफली यहाँ से काउंट होंगे। और तुम्हारे जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, जो भी परसेंटेज है, लेट्स से वो 80 है, तो 8 मार्क्स तुम्हारे मैट्रिक के काउंट होंगे। तो 8 + 33 दैट मेक्स 41। मैं पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। 41 तुम्हारा ये स्कोर होगा, फिर जो तुम टेस्ट में स्कोर करोगे उसका 50% काउंट होगा, ये मिला के तुम्हारा मेरिट बनेगा। How tough is the FAST entry test? वैसे इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट। असल में होता ये हमारा टेस्ट बाकियों से डिफरेंट इसलिए है कि हमारे टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, और नेगेटिव मार्किंग का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए टेस्ट मुश्किल तो होगा लेकिन स्ट्रेंज नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे ये कोशिश करते हैं कि 100% जितने भी सवाल आते हैं वो अटेम्प्ट कर लें। उस कंडीशन में होता ये है कि आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट ना करें। अगर आप को श्योर है किसी सवाल का आंसर तो वो आप अटेम्प्ट करें। और आप अगर आपने फ्लूक लगाना है तो अगर आप 80% कॉन्फिडेंट है तो फ्लूक लगाएं, वरना आप स्किप कर दें। ठीक है, लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड होगा जाहिर बात है वो अटेम्प्ट तो करेगा। जो बच्चा जिसके इंटर में 80% है, उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन तो होती है कि मैथ्स में किस तरह के सवाल होते हैं और इंग्लिश में किस तरह के सवाल होते हैं। All right, sir. Bilal has asked a couple of questions. Number one, which programs are offered at FAST University City Campus? सिटी कैंपस में हमारे यहाँ बीएस का कोई प्रोग्राम नहीं होता। सिटी कैंपस हमारे एमएस के प्रोग्राम्स के लिए, एमएस और पीएचडी के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सिटी कैंपस में होते हैं। What percentage is required in HSC 1 to apply for BS programs? HSC 1 की कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। HSC में जो भी परसेंटेज आपकी है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन HSC 2 में जो कंबाइंड स्कोर आएगा वो मिनिमम 50% चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए, और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 60% चाहिए। Why is computer science not included in FAST admission test for computer background students? इसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा होता। इंटरमीडिएट के दूसरे जो होते हैं ग्रुप्स, उन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा होता। और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये बच्चे कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट होके आए हमारे पास। कंप्यूटर साइंस तो हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायर्ड, वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स की बेस पे ही कंप्यूटर साइंस पूरा का पूरा चलता है, तो आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। सर मीरू जो डिप्लोमा कर रही थी वो कह रही है कि 3 इयर्स का ही है वो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी तक। जब तक सीट्स निकल जाएंगी फास्ट की, सो व्हाट कैन आई डू? क्या फर्स्ट ईयर मार्कशीट की बेस पे हो जाएगा? देखो बेटा, आप ये करो, जहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट करो कि कोई आपको या तो रिजल्ट कार्ड, अगर वो नहीं दे सकते तो कोई प्रोविजनल लेटर दे दें जिसमें ये लिखा हो कि आपकी जो परसेंटेज है सेकेंड ईयर में कितनी है। तो उससे भी फिलहाल काम चल सकता है।
Is BScs more worthy than directly enrolling in BS AI or data science? नहीं, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड पे। आपका एप्टीट्यूड क्या है? तो जो आपका एटीट्यूड है वो डिग्री वर्दी है। तमाम डिग्रीज की अपनी वैल्यू होती है। तो हम आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इज बेटर देन एआई। हो सकता है आपके लिए एआई बेटर होगी। आपका एप्टीट्यूड क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए एआई बेहतर है या कंप्यूटर साइंस बेहतर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेहतर है। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर हम फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं और दो तीन यूनिवर्सिटीज में और भी अप्लाई करें, तो क्या हम एक साल के लिए कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और दोबारा अप्लाई करें, तो क्या ये पॉसिबल है? और यस, इट इज़ पॉसिबल। हमारे पास क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है। आप इस साल अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो अगले साल हमारे पास एडमिशन टेस्ट देके एडमिशन ले सकते हैं। और जहाँ जो आपने एक साल पढ़ा है किसी भी HEC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, उनकी ट्रांसक्रिप्ट हमें आप प्रेजेंट करेंगे और क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पूरा प्रोसीजर है। आपके क्रेडिट जो सिमिलर होंगे उस डिग्री प्रोग्राम के, जिनमें आपका GPA 2 होगा, वो आपके एग्जाम हो जाएंगे। So Hamza Hussain is applying on the basis of his second year result. वो कह रहे हैं कि प्लीज गाइड कर दें, ये किस तरह होगा? तो बेटा आप फॉर्म फिल करते हुए मैट्रिक के मार्क्स डालेंगे और सेकेंड ईयर की पूरी मार्कशीट और सेकेंड ईयर के मार्क्स डालेंगे। ठीक है? प्रोसीजर वही है जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं, वैसे आप भी अप्लाई करेंगे। What is the fee structure for BS program? हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फी स्ट्रक्चर जो है ना, कंपेरेटिवली टू अदर यूनिवर्सिटीज हमारा बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्पेसिफिकली हमारा फी स्ट्रक्चर है 12,000 पर क्रेडिट आवर। तो अगर आप ले रहे हैं लेट सपोज के 20 क्रेडिट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो इसका मतलब हुआ 2,40,000 रुपये आपकी फीस होगी। नॉर्मली एक सेमेस्टर में 18 से 20 क्रेडिट तक होते हैं। What was the merit of last year's cybersecurity and software engineering program? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का मेरिट स्कोर था 65 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था 66। सर वो पूछ रही हैं डिप्लोमा रिलेटेड कि अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 80+, सेकेंड और थर्ड ईयर में भी 80+ हो, तो क्या डिप्लोमा होल्डर्स की कुछ परसेंटेज माइनस होती है या फिर इंटरमीडिएट लेवल जैसी ही सेम काउंट होगी? नहीं, परसेंटेज आपकी माइनस नहीं होगी, जो आपकी है वही काउंट होगी। आई हर्ड सम रूमर्स कि इस साल मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाएगी, रीजन इसके मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला चेंज हुआ है, इज दैट ट्रू? नहीं, देर इज नो चेंज इन द फार्मूला। मेरिट हाई होने का रीज़न ये हो सकता है कि बच्चों के स्कोर्स बहुत अच्छे हों इंटरमीडिएट में और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हों। ठीक है? वैसे तो मैंने आपको ट्रेंड बता ही दिया कि हर साल इंक्रीज हो ही रहा है। तो इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मेरिट थोड़ा सा इंक्रीज होगा। सर आर फास्ट ग्रेजुएट्स इन डिमांड इंटरनेशनली एज वेल? ओ यस, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंटरनेशनली तमाम कंट्रीज में अ, बहुत वार्मली जो एक्सेप्ट होते हैं, और जॉब के लिए भी और अपने MS प्रोग्राम्स के लिए भी। डज मेरिट वेरी फ्रॉम कैंपस टू कैंपस? यस, डेफिनेटली। हर कैंपस का मेरिट स्कोर डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरिट के डिफरेंट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई कैंपस दूसरे कैंपस से बढ़तर है, बेटर है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट वहाँ पे कितने हैं और वहाँ पे अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, उसकी बेसिस पे मेरिट स्कोर डिसाइड होता है। हमारे सारे कैंपसेस में सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सेम फैसिलिटीज हैं और तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम। I have studied pre-engineering in HSC and want to pursue computer science in university. Will the university train me and teach in depth of the computer science field? Moreover, sir, my second year results will come till August, so how do I apply for FAST? बिल्कुल बेटा, हम बैठे इसलिए हैं। आपको जब एडमिशन देंगे तो हम आपको इन डेप्थ सिखाएंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। जब आप मार्केट को कहीं से भी आप पता करें कि मार्केट में कंप्यूटर साइंस की में जो हैं वो ग्रेजुएट्स कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रेफर किए जाते हैं। एक हमारे पास इदारा है जो
कहलाता है पाशा। ठीक है, पाशा के सर्वे के मुताबिक पास के ग्रेजुएट्स पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा हाईली पेड है। और सेकंड क्वेश्चन था आपका कि आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा। तो कोई मसला नहीं है, आपका क्या सारे बच्चों का रिजल्ट अगस्त में ही आएगा, जितने बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस जो आपका रिजल्ट आए तो मिनिमम मेरिट स्कोर आपको मीट करना है, जो हमारा है, मतलब मेरिट स्कोर का मतलब जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो मीट करनी है, बस खत्म। Is CS more worthy than cybersecurity and data science in corporate sector? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर सेक्टर, हर फील्ड की अपनी डिमांड है। तो ये आप ये मत सोचें कि किस फील्ड में जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज होंगी आपकी, वही आपके लिए जरिया बनेगी आपको आगे ले जाने का। ठीक है, तो आप बिल्कुल जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसको आप परस्यू करें। What are the total marks of FAST NU test? 100 मार्क्स। Is it possible to achieve 3.5 GPA per semester? I heard about professors at FAST, they're a bit strict when it comes to exams. अच्छा देखें, फास्ट में जीपीए तो बिल्कुल बच्चों को मिलता है, 3.5 क्या 4 जीपीए भी मिलता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, हर एक को नहीं मिलता। मतलब अगर आप अबव एवरेज अपने आप को प्रूव करते हैं तो आपको 3.5 जीपीए मिलेगा। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज हैं और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 3.5 जीपीए मिल जाए, वो ज़रा मुश्किल है। फास्ट में आपको सही मानों में पढ़ाई करनी पड़ती है। फास्ट में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बेतहाशा हैं, वो भी आपके ग्रूमिंग का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो कि जिसे कहते हैं आप नॉन क्रिएशनल एक्टिविटी, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपके लिए फास्ट में ज़रा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। My first year percentage is 75%. How much do I need to score in the aptitude test to secure admission in the cybersecurity program? और मैट्रिक में कितनी है, ये भी तो सवाल हाँ है। जी, कासिम आप प्लीज अपनी मैट्रिक की परसेंटेज भी शेयर करें। फास्ट में पढ़ने के साथ जॉब करना इज पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। फास्ट इज अ फुल टाइम जॉब इटसेल्फ। फास्ट में हमारे जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जॉब के साथ जो है ना स्टडी करें एट फास्ट। Do we have tennis and volleyball or programming based competitions at FAST? ओ यस, देयर आर वेरियस कंपटीशंस। हमारे पास एक हमारा इवेंट होता है प्रोकॉम, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग इवेंट है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग के अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन है, रोबोटिक कंपटीशन है, गेमिंग कंपटीशन है, बिजनेस के कंपटीशन है। तो प्रोकॉम में तमाम तरह के कंपटीशंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स का एक अलग जो है ना एक कमेटी है स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फुटसॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। बैडमिंटन में बहुत ज़बरदस्त कोर्ट बना हुआ है हमारे पास। इन तमाम के टूर्नामेंट्स भी होते हैं हमारे यहाँ। हर साल एक होती है स्पोर्ट्स लीग। ठीक है, उसमें इन तमाम स्पोर्ट्स के कंपटीशंस होते हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सर कासिम बता रहे हैं कि उनकी फर्स्ट ईयर में भी 75% था और मैट्रिक में भी 75। तो तो अब बेटा, वो जानना चाह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में अच्छा देखो बेटा, 75 का मतलब ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पॉकेट में इस वक्त तकरीबन 37.5 मार्क्स है। ठीक है, इसका 50% कर लोगे, ये बनेगा 37.5। मैं सिर्फ लास्ट ईयर का बता सकता हूँ। लास्ट ईयर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में 65 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इस साल क्या होगा, 2-3 मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये प्रोडिक्शन हम नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इट कुड बी 70, इट कुड बी 67, इट कुड बी 75, लेकिन अंदाजा कर लो कि कितना चाहिए होगा तुम। What about domicile? Is it important that we have Sindh or Karachi base? And what about CNIC address? Is it important that we have Karachi address? अच्छा देखिए, ज़रूरी ज़रूरी तो है, आपका डोमिसाइल ज़रूरी है, आपका एनआईसी ज़रूरी है, लेकिन इससे मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिक्वायरमेंट अब एचईसी ने और पीईसी ने कंपलसरी कर दी है कि बच्चा जब अप्लाई करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है।
और डोमिसाइल अगर नहीं है तो डोमिसाइल आप बनवा लें। डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बाय HEC एंड PEC। तो वो एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि आपको एडमिशन उसकी बेस पे दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। एडमिशन आपके मेरिट के बेस पे होगा। फास्ट से ग्रेजुएशन के बाद क्या कोई गैट का टेस्ट कंडक्ट होता है? पास से नहीं, गैर का तो कोई टेस्ट नहीं था। Are there any need-based financial assistance programs? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा अपना एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है फास्ट का। ठीक है, जब आप एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे, जब आप वो सबमिट कर रहे होंगे, उस वक्त आपसे पूछा जाएगा बेटा आपको फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर अप्लाई करें फाइनेंशियल एड के लिए, वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा एहसान ट्रस्ट है, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इसके अलावा कुछ इदारे और भी हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, जैसे EDUFI, ये भी एक इदारा है जो हमारे बच्चों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। ठीक है, तो इनफैक्ट फाउंडेशन है, ये भी इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। तो यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। Maheen is asking how many students typically apply each year. अच्छा, कैंपस टू कैंपस वेरी करता है। कराची कैंपस में तकरीबन 6,000 to 7,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। बाकी कैंपसेस में डिफरेंट नंबर होता है। ये डिपेंड करता है कि उस शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस शहर में किस किस इलाके से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। Acha, if I have 81% in first year and 72 in metric, how much score I need to secure in fast NU for cyber security? देखो, इसमें फिर वही बात है ना कि 80 का मतलब 32 तुम्हारे हो गए इंटरमीडिएट में, और 7 नंबर हो गए तुम्हारे मैट्रिक में। 39 हो गए। अब तुम 39 में से तकरीबन 67 68 में से 39 निकाल लो, जो बचेगा वो स्कोर तुम्हें चाहिए होगा। दैट मीन मल्टीप्लाई बाय 2। इसका 50% काउंट होता है ना टेस्ट का। सही सर, फॉर्मूला आप अगर रिपीट कर दें, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी परसेंटेजेस शेयर करके यही पूछ रहे हैं। देखो बेटा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। आपका जो मैट्रिक का स्कोर है उसका 10%, ठीक है, वो काउंट होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर तुम्हारा मैट्रिक में 83% है तो 8.3 मार्क्स ये तुम्हारे ऐड हो जाएंगे। अगर 80% है तो 8 मार्क्स ऐड होंगे। और इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी कंप्लीट रिजल्ट है उसका 40% काउंट होगा। अगर 80% इंटरमीडिएट है तो ये बनता है 32 मार्क्स। ठीक है, 8 4 32। 32 और वो परसेंट मिला के ये तुम्हारा हो गया अकेडमिक बैकग्राउंड का स्कोर। इसके अलावा टेस्ट में जो भी तुम्हारा स्कोर होगा उसका 50% काउंट करेंगे। अगर टेस्ट में तुमने 70 स्कोर किया है तो 35 काउंट होगा टुवर्ड्स योर मेरिट। ये मिलाकर तुम्हारा मेरिट स्कोर बनेगा। थैंक यू। So what opportunities are available for networking and industry exposure? इंडस्ट्री एक्सपोजर तो बहुत है हमारे पास। जब आप फास्ट में आएंगे तो एक तो हमारे पास एक बाकायदा प्लेसमेंट ऑफिस और इंटर्नशिप ऑफिस मौजूद है। आपको इंटर्नशिप्स करवाई जाएंगी, आपको इंडस्ट्री टूर करवाए जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज विजिट करती हैं हमारे पास आके, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं और कुछ मतलब कुछ क्या, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो ये एक्सपोजर तो मौजूद है। नेटवर्किंग भी इसी तरीके से आपकी हो सकती है, जब आप इंडस्ट्री टूर करेंगे वहाँ लोगों से मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो IT एक्सपर्ट होते हैं, टेक एक्सपर्ट होते हैं, वो फास्ट में विजिट करते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। डिफरेंट जो हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया था, प्रोफॉर्म एक कंपटीशन है एक बहुत बड़ा, इसमें इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप उनसे नेटवर्किंग कर सकते हैं। यू आर फ्री टू हैव अ चिट चैट विद एनीवन, और आप बिल्कुल उनसे जो है ना मालूमात हासिल करें, उनसे अपने लिंकेजेस पैदा करें। यस, दिस इज पॉसिबल। Which intermediate groups are eligible for different degree programs offered at FAST? अच्छा, ये दोबारा बता देते हैं आपको। कंप्यूटर साइंस के लिए इंटरमीडिएट चाहिए विद मैथमेटिक्स, यानी कि या तो प्री इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस हो। नॉर्मली ये लोग होते हैं जो कि मैथ्स करके आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यही दोनों बच्चे जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल हैं।
जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं वो हमारे पास इस वक्त अगर सिर्फ प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो मैनेजमेंट साइंस के 2 डिग्री प्रोग्राम है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट साइंस के जो मैंने डिग्री प्रोग्राम बताए उसमें हर बैकग्राउंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपके पास प्री मेडिकल है तो आप सिर्फ इन 2 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते During summer semester break, can we attempt one or two subjects and pass them during summer, or universities close during semester break? हैं। और समर सेमेस्टर हमारा ऑफर होता है, लेकिन समर सेमेस्टर से कोर्सेज रिपीट करने के लिए ऑफर होता है। यानी अगर आपने कोई नया कोर्स लेना है तो वो आपको समर में नहीं मिलेगा। रिपीट कोर्सेज यू कैन टेक इन समर, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे हैं जो रिपीट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कोर्स ऑफर होते हैं। अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में गैप हो कुछ इयर्स का, तो क्या परसेंटेज माइनस होगी या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई भी डिडक्शन नहीं होती परसेंटेज में, आपकी जो एक्चुअल परसेंटेज है वही काउंट होगी। Is there scholarship for students who get 3 GPA? नहीं, जीपीए बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये मैंने आपको बताया पहले। I got to know about FAST and it is challenging. I mean, it gives many assignments to complete and you have to give your most time to it. So is it true? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, असाइनमेंट तो मिलते हैं। देखो, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, सेमेस्टर सिस्टम की खास बात ये है कि डे 1 से आपकी असेसमेंट शुरू हो जाती है। यानी आपको वीक 1 में टीचर आपको या तो एक क्विज देगा या असाइनमेंट देगा। वो जो क्विज या असाइनमेंट है उसके मार्क्स तुम्हारे फाइनल मार्क्स में काउंट हो रहे होंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम में ये आसानी है कि आपको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर पूरे साल की मेहनत नहीं करनी। आपको जितना पढ़ाया गया है मिड 1 तक, तो मिड 1 का एग्जाम दे देंगे, मिड 2 तक इतना पढ़ाया, मिड 2 का एग्जाम दे देंगे। इसमें आपके मार्क्स क्यूमुलेट होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है बच्चों को, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये इसमें बेनिफिट बड़ा होता है क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि आप हर स्टेज पे एकेडमिकली कितने साउंड है उस पर्टिकुलर कोर्स में। Sir, is there any age limit for admission to FAST University? नहीं, एज लिमिट नहीं है फिलहाल तो कोई। Bilal is asking when will we get to know about closing merit this year for our desired program? जब आपको पता चलेगा उस वक्त अप्लाई करने का टाइम तो जा चुका होगा, क्योंकि जब आप अप्लाई कर लेंगे सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद क्लोजिंग टाइम पता चलता है बेटा, उससे पहले तो नहीं चलता। Do we have transportation available for our daily commute? प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट चलाता है और बहुत सारे बच्चे उसको अवेल करते हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने फास्ट के टेस्ट के लिए अप्लाई किया, 30 जून डेट थी, बट डेट चेंज करवाई ड्यू टू सम रीजंस। तो सर मेरे एडमिट कार्ड पर डेट चेंज नहीं की। दे टोल्ड मी टू रीच देयर एट 8 o'clock, बट 30 को तो 11 बजे टेस्ट था, बट दे टोल्ड मी टू रीच एडमिशन ऑफिस कंट्रोल रूम 4, सो लाइक व्हाट इज द रीजन? अच्छा देखो बेटा, बात यह है कि एक दफ़ा जब आपका एडमिशन फॉर्म लॉक हो गया, उसमें चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं ये अ, जो बहुत ही ऐसे केसेस होते हैं जो कि नहीं पहुंच सकते तो हम उनको अलाउ करते हैं। अगर आपको ये कहा गया है तो बिल्कुल वी ओन दैट एंड वी विल अलाउ यू टू अपीयर द टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट विच इज मेंशन ऑन योर एडमिट कार्ड। यकीनन आप में से कोई मेरे पास आया होगा और मैंने वो डेट चेंज की होगी, तो ये आप बिल्कुल आ सकते हैं उस डेट में। वो बिल्कुल वैलिड एडमिट कार्ड है, उस पर हम आपको एडमिशन टेस्ट लेंगे। डोमिसाइल और सीएनआईसी एड्रेस सिंध बेस होना जरूरी है क्या? बिकॉज मेरा पंजाब का है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका कहीं का भी डोमिसाइल है, यू कैन अप्लाई। हाउ मच फी इंक्रीजेस पर सेमेस्टर यूजुअली? ये मैंने अभी बताया था आपको, तकरीबन 2,30,000 2,40,000 पर सेमेस्टर फीस है। Could you please clarify whether I need to secure an additional 40 to 45 marks in the aptitude test, assuming 37 marks are already counted from my first year metric, or if I need to score around 70 to 75 marks for cybersecurity in the test, as you mentioned? देखो बेटा, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना ज़रा मुश्किल है, आप खुद भी कर सकते हो उसको। मैंने आपको बता दिया फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले को यूज़ करो। लास्ट टाइम मैंने बताया आपको साइबर सिक्योरिटी में 65 मार्क्स पे दिया था, ठीक है। इस साल एक दो नंबर बढ़ेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना मार्क्स चाहिए। What is the best and golden tip for scoring best in fast entry test? हम्म अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, टेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आप
टेस्ट देने के लिए बैठोगे लैब में, आपकी स्क्रीन पे आएगी टेस्ट को अटेम्प्ट करने की इंस्ट्रक्शन। वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कंप्लीटली पढ़ें। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन में तमाम चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन हो सकते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करने के। एक तो ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या होगी, ये होगी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए वेटेज क्या है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ वेटेज। सबसे ज़्यादा वेटेज होगा मैथ के सवालात का, यानी कि एक सवाल पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग में भी उतना ही नुकसान होगा आपको। अगर आप मैथ में तुक्के लगाएंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इंग्लिश का जो वेटेज है वो है 0.33, यानी 3 सवाल ठीक करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा टेस्ट में। और आईक्यू का वेटेज है 0.5, यानी 2 सवाल ठीक करने पे 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेगेटिव वेटेज कितनी है और उस का पर्टिकुलर उस सेक्शन का वेटेज कितना है, उस हिसाब से फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि मेरी डेट चेंज कर दी, 1 जुलाई कर दी है, बट 30th को 11 o'clock पर टेस्ट था, बट 1 जुलाई को 8 o'clock पर बुलाया है, तो टेस्ट टाइम भी चेंज होगा। तो 8 o'clock पे अगर बुलाया है तो आप 8 o'clock पे आ जाएं, अब हम टेस्ट ले लेंगे आपका। वो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये रन टाइम चेंजेस होते हैं ना, हम रन टाइम करते हैं, तो आप आएंगे तो हम उस वक्त आपको टेस्ट में बिठा देंगे। Is admission through SAT easier than admission through fast entry test? ये तो बिल्कुल भी हम कंफर्म नहीं कर सकते आपको। साइड में ये है कि आपका टेस्ट आपको दे चुके होते हैं, स्कोर आपको पता होता है। ठीक है। कितना कट ऑफ होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने 80 कट ऑफ पे एडमिशन दिए थे सर्टिफिकेट्स पे। इस साल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, यकीनन ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब आपका ये डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े से डाउटफुल हैं कि सेट के बेसिस पे आपका नहीं हो सकता, तो हमारा टेस्ट दे दीजिए आप। Or which programs are currently the most sought after at Fast University? हमारे पास सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस में, और हमारे पास सबसे ज़्यादा सीटें भी बीएस कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, उसके बाद फिर एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही होते हैं। Is it true the more late I submit my entry form, the more late test dates I can get? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही है कि अभी हमारे पास जैसे जैसे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो चीज़ को लिए हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है जब हमारे पास आखिर की सीटें फिल हो जाती हैं तो हम पे शुरू की डेट्स में कुछ बच्चों को एडजस्ट करते हैं। तो ये सरप्राइज आपको मिल सकता है कि अगर आप आखिर तक वेट कर रहे हैं तो आपको शुरू की डेट मिल जाए। तो बेहतर ये है कि आप कुछ जो डेट मिल रही है वो आप ले लें, और बिल्कुल लास्ट डेट में ना करें। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि 26 जून को आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सरप्राइज मिल सकता है। So regarding the job placements, how does FAST support students in this area? अच्छा, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्लेसमेंट ऑफिस और एक है इंटर्नशिप ऑफिस। ये दोनों डिपार्टमेंट डेडिकेटली एफर्ट्स कर रहे होते हैं बच्चों को इंटर्नशिप्स और जॉब दिलवाने में। हमारे पास हर साल बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव करती हैं और बच्चों को ऑन कैंपस ही सेलेक्ट भी कर लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्मूथ प्रोसीजर है और बच्चों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जॉब को ढूंढने के लिए। सर शाजिया पूछ रही हैं कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिट कराने की। 26 जून। So can you elaborate on the distribution of seats board wise and city wise? ऐसी कोई भी हमारे पास कोटा सिस्टम नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, किसी भी वो से आ रहे हैं, आपको मेरिट स्कोर मीट करना है, बस दैट्स इट। What makes FAST's academic environment different from other universities? देखो फास्ट का बेटा खास बात क्या है, फास्ट में अ, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ाई के अलावा दूसरे जो
दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नुकसानदेह आपके, उसके लिए उसमें आप इन्वॉल्व ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट का जो इन्वायरमेंट है बहुत सेफ एंड सिक्योर है और बहुत कंड्यूसिव है। आप आएंगे कैंपस विजिट करेंगे, आपको डिफरेंस जो है ना खुद ही फील हो जाएगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज में और फास्ट में फ़र्क क्या है। When will we get to know about closing merit this year for our desired program? 22 जुलाई। So what is the difference between BS Computer Science, BS Software Engineering, and BS Artificial Intelligence? अच्छा, BS कंप्यूटर साइंस जो है ना वो प्योरली कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है ना उसमें आपको बहुत सारे कोर्स करवाए जाएंगे। यानी इसमें आपको नेटवर्किंग भी कराई जाएगी, आपको वेब डेवलपमेंट भी कराई जाएगी और इसमें आपको कुछ और भी कोर्सेज कराए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन जेट उसमें एम्फेसाइज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और तीसरा कौन सा कोर्स था? Artificial Intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थोड़ा सा रोबोटिक्स की वाली साइड पर है, जिसमें आजकल आपको पता है एआई का दौर है, तो एआई रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं जो मार्केट में आते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाएगी एआई में और उससे रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें। Hamza wants to know that is FAST globally recognized? Can I get into multinational companies like Microsoft and Google? जी बिल्कुल, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सारी कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक तमाम में लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आप आएंगे फास्ट में तो हमारे कहाँ कहाँ ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त। सर रोहान पूछ रहे फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट फी क्या होगी? ये बेटा तकरीबन 2,80,000 के करीब बनेगी। ये डिपेंड करेगा कि कितने क्रेडिट आवर आप पढ़ रहे हैं ना, और उस डिग्री प्रोग्राम में कितने क्रेडिट आवर हैं। रफली 280,000 होगी। What kind of internship opportunities are available during the degree? इंटर्नशिप का मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है। वो इंटर्नशिप ना अब आपकी डिग्री का पार्ट है। तो आपकी डिग्री में जिस सेमेस्टर में इंटर्नशिप लिखी हुई है उस सेमेस्टर में या उस सेमेस्टर से एक दो सेमेस्टर पहले आपको इंटर्नशिप करवा दी जाएगी। सर फैसल पूछ रहे हैं how many times FAST opens admissions in a year? ओनली वंस इन अ ईयर। निखत पूछ रहे हैं कि वो बच्चे जो इंजीनियरिंग के हैं उनको सीएस की बेसिक चीजें पढ़ाते हैं या डायरेक्ट हायर एजुकेशन? देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं ना कंप्यूटर साइंस में तो उनको सीएस की बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, आईसीटी, इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो वो एक बाकायदा एचईसी ने जो स्टडी प्लान दिया है वो ऐसे ही है कि बेसिक से स्टार्ट करके फिर एडवांस लेवल तक जाते हैं। आपका बैकग्राउंड कोई भी होगा, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से ही करके आ रहे होंगे, तो बेसिक कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद फिर एडवांस कोर्सेज करवाए जाएंगे। फरा पूछ रही है इज द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड? इट इज कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड। मेरिट क्या होगा इस साल सीएस? वी डोंट नो, ये बाद में बताएंगे आपको बेटा। What is the format of the FAST admission test? फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देते हैं। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसके 4 सेक्शन होंगे, बेसिक मैथ, एडवांस मैथ, इंग्लिश और आईक्यू। हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक टाइम होगा और हर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। और जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे तो आप पुराने सेक्शन में वापस नहीं आ सकेंगे। जो एलोकेटेड टाइम है उस एलोकेटेड टाइम में रहते हुए आपने जितनी भी यानी अटेम्प्ट करना है टेस्ट, आपने पिछला कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है वो भी पॉसिबल है। कोई क्वेश्चन आपने उसकी चॉइस रिसेट करनी है वो भी पॉसिबल है, लेकिन उस स्पेसिफिक सेक्शन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए। So as it is a computer based test, will the results be shown right after test? टेस्ट के बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा कि आपने
किस सेक्शन में कितने सवाल अटेम्प्ट किए, यानी टोटल कितने थे, और आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं और उसमें करेक्ट कितने थे। टेस्ट की स्क्रीन पे आपको ये नजर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरिट स्कोर बाद में बनेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगी? इंशाल्लाह 17 अगस्त। How much time is given to each section in the test? ये हर एक डिफरेंट है बेटा। ये डिपेंड करता है ना, जैसे एडवांस मैथ है उसमें 50 होंगे सवाल आते, तो तकरीबन उसमें 1 घंटा मिलेगा आपको। और बेसिक मैथ में 20 सवाल होंगे, उसमें तकरीबन 20 मिनट मिलेंगे। इस हिसाब से एलोकेट हुआ हुआ टाइम। So, what are some common mistakes students make while preparing for the admission test? कॉमन मिस्टेक बेटा देखो, एक तो ये है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, तो आपने बिल्कुल पुरसुकून होके देना है। आपने थोड़ा सा भी जो है ना, अगर आप टेंशन में आ गए तो फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना, फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। और मैंने आपको इसी सेशन में कई दफ़ा कहा है कि बेटा आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने जिस चीज़ में आप श्योर हैं वो अटेम्प्ट करें, और कम से कम तुक्के लगाएं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और हर सेक्शन का वेटेज जो है, वेटेज और एक सवाल पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करें सवाल। एग्जाम पूछ रहे हैं कि हर सेक्शन का डिफरेंट टाइम मिलेगा सर। आई थिंक सेक्शंस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों का, इस पे प्लीज टेस्ट का इलाबरेट कर सकते हैं प्लीज? अच्छा, मैं देखो बेटा ये बता चुका हूँ आपको, 4 सेक्शन होंगे टेस्ट में, 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शंस में बेसिक मैथ कितना होगा, 50% ऑफ द टेस्ट। एडवांस मैथ होगा 50% ऑफ द टेस्ट। बेसिक मैथ होगा 20% ऑफ द टेस्ट, यानी जितने भी टेस्ट के सवाल आते हैं, 100 सवाल होते हैं टेस्ट में, 100 में से 20 सवाल आएंगे तुम्हारे बेसिक मैथ के, और 100 में से 50 सवाल आएंगे तुम्हारे एडवांस मैथ के। ठीक है। इसी तरीके से आईक्यू का वेटेज जो है ना वो है 20, तो आईक्यू के हिसाब से सवाल आएंगे। इंग्लिश का वेटेज है 0.33, इंग्लिश में सवाल होंगे तकरीबन 30। तो इस हिसाब से टाइम की एलोकेशन होगी। टोटल टेस्ट का टाइम तकरीबन 2 घंटे है। फाइनल एग्जाम पीरियड कब है इन एवरी सेमेस्टर? कब है? ये 16 वीक में होता है। जैसे अभी जो हमारा सेमेस्टर चल रहा था स्प्रिंग, उसके एग्जाम हमारे स्टार्ट हुए थे जून में। इनफैक्ट मई के एंड में स्टार्ट होते हैं और जून में ख़त्म हो जाते हैं। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी तकरीबन आ गए। और जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होगा उसके फाइनल एग्ज़ाम होंगे दिसंबर के महीने में। फाइनली एक्सप्लेन नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा। सब्जेक्ट वाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग एवरेज है कि 4 सवाल गलत करने पे 1 सवाल आपका माइनस हो जाए, ये एवरेज है। सर टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन? तकरीबन 2,80,000 या 2,90,000, ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट कितने फर्स्ट सेमेस्टर में। और सर शाजिया पूछ रही है कि फास्ट की डेट्स 29 जून टू 1 जुलाई है, और इसके बीच में एक और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 6 जुलाई से 8 जुलाई है, तो कोई मसला तो नहीं होगा दोनों में? नहीं नहीं, आप डेट तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें ना। अगर आपका वहाँ पे टेस्ट 2 जुलाई का, तो हमारे पास 3 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे, वो तो कोई इशू ही नहीं है। वो तो हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। सर रमजान में ऑफ होती है क्या? नहीं, रमज़ान में बेटा यूनिवर्सिटी खुली होती है, एग्ज़ाम अगर होंगे तो एग्ज़ाम भी हो रहे होंगे, तमाम चीज़ें हो रही होंगी। फैसल कह रहे हैं मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर नवंबर दिसंबर में देने हैं एंड आई गॉट 75% इन फर्स्ट ईयर, क्या मैं इस साल एलिजिबल होऊंगा या नेक्स्ट ईयर? एंड नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ईयर तो मेरी इंटर की परसेंटेज माइनस होगी? नहीं आपकी कोई परसेंटेज माइनस नहीं होगी, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई कर सकते हैं, इस साल नहीं अप्लाई कर सकते। So what emerging fields do you see growing in Pakistan over the next few years? देखिए अब जो है ना, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, वो जो भी टेक्नोलॉजी आती है फास्ट कोशिश करता है कि वो उनको ऑफर करे। ठीक है। हमने एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की एक टेक्नोलॉजी ऑफर की, उसमें हम जो है ना स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नई फील्ड है, पाकिस्तान में इसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप नई फील्ड है। इसमें जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो किस तरीके से इंडस्ट्री में अपना खुद सेटअप स्टेब्लिश करेंगे,
और किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो सिखाया जाएगा आपको। So what academic performance is required to maintain a scholarship? अच्छा, हमारे पास जो स्कॉलरशिप मेरिट बेस होती है उसमें आपको SGPA 3 मेंटेन करना है मिनिमम। कोई भी स्कॉलरशिप होगी ना, 3 GPA उसके लिए रिक्वायरमेंट है मेंटेन करने की। So what is the scope of cyber security according to you? साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है आजकल, तो बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी, यानी हमारे पास, मैं बताता हूँ कि हमने लास्ट ईयर जितने भी साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए थे वो सारे के सारे अच्छी जगहों पे अपॉइंट हो चुके हैं। फिलहाल साइबर सिक्योरिटी की अच्छी डिमांड है मार्केट में। जनवरी में जो सेमेस्टर ब्रेक होगा वो कितने वीक्स का? 2 वीक्स का। एआई में कोडिंग पढ़ाई जाएगी या कुछ डिफरेंट, बिकॉज सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कोडिंग एक्सेट्रा होती है। देखिए बेटा, कोडिंग तो आप तकरीबन तमाम ही डिग्री प्रोग्राम में करवाई जाती है, वो तो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। इवन के हम कोडिंग जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को करवा रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अब हर फील्ड के लिए ज़रूरी है करना। तो कोडिंग तो ये है कि नंबर ऑफ कोर्सेज कम होते हैं, कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा होंगे, बाकी डिपार्टमेंट डिग्री प्रोग्राम में थोड़े से कम होंगे, लेकिन कोडिंग तो इन्वॉल्व है। So what advice would you give students who are transitioning from college to university life? हाँ बेटा, थोड़ी सी आपको रूटीन चेंज करनी पड़ेगी अपनी। खास तौर में अगर आप फास्ट में आ रहे हैं, फास्ट में आपको ना डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि यार मैं अभी सिर्फ क्लास ले लूँ और आखिर में सेमेस्टर पे पढ़ूंगा, वो आपके लिए नुकसानदेह। डेली बेसिस पे अगर आप अपना काम कर रहे होंगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप उसी दिन जो है अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लें, समझ लें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है ना, सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम में बड़ा फ़र्क होता है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डे 1 से आपको जो है ना, फर्स्ट वीक से ही आपको असाइनमेंट क्विज़ेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे वाकई में पढ़ने वाले हैं ना उसको एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। Sir, how much marks we should attain in test for getting admission in BSCS or BSAI? हाउ मच मार्क्स? जी, टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए? कोई आइडिया नहीं, ये डिपेंड करता है आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स कितने हैं। और रोहान, आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में सर बता चुके हैं। ये लाइव सेशन इंशाल्लाह हम सेव कर देंगे फेसबुक पेज पे, आप प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा सर प्लीज? 17 अगस्त। अच्छा, हमजा पूछ रहे हैं कि आई सॉ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर, इट सेज 15 + 3 इन फर्स्ट सेमेस्टर, डू वी पे 12,000 per credit hour for 15 or 18 credits per semester? यस, 18 क्रेडिट के आपको पैसे देना बेटा। 15 + 3, 3 का मतलब ये है कि 3 क्रेडिट की लैब्स हैं और 15 क्रेडिट की थ्योरी है। तो ये इट विल मेक टोटल 18 क्रेडिट, तो 18 क्रेडिट के पैसे देने हैं। सर पास पेपर्स रिपीट होते हैं? नहीं होते। सर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में प्लीज बता दीजिए। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हमारे पास जो है बेटा, वो है सिंध एंडोमेंट बोर्ड की स्कॉलरशिप, ऑरेंज टी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप, बलूचिस्तान एंडोमेंट बोर्ड की स्कॉलरशिप, और होनहार स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये सारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते Sir, what is the top most required faculty in Pakistan? हैं। फैकल्टी, I think program by special. बेटा देखो, इस वक्त तो AI का दौर है, सबसे ज्यादा डिमांड में AI है इस वक्त। Sir, which companies regularly recruit fast graduates? जितने भी टॉप के सॉफ्टवेयर हाउसेज, जितने टॉप के सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक्स और मल्टीनेशनल्स, वो तमाम के तमाम हमारे पास आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिस्टम्स लिमिटेड, वो परसों ही आए थे हमारे पास। उनकी प्रायोरिटी में फास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरीके से और जितने भी लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, लीडिंग बैंक्स हैं, उनकी प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी वाइज जो है, अगर उनके IT डिपार्टमेंट में या उनको सॉफ्टवेयर हाउसेज चाहिए में लोग चाहिए, तो वो फास्ट को प्रेफर करते हैं।
Bilal, I think that is not possible. So you can if we get to know that what is closing merit this year for programs, then it will be much easier to calculate how much score we need. ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, ये तो डिपेंड करेगा ना कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट राइट नाउ। सर टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, पास पेपर्स से या कहीं और से? जहाँ मैं बैठा हूँ ये बेस्ट तैयारी कराते हैं। अनीस हुसैन आइए प्लीज, निखित ज्वाइन कीजिए, हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा सर, रहमान पूछ रहे हैं फास्ट का टेस्ट कराची ब्रांच में क्लियर हो गया तो फिर भी हम किसी और ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें आप किसी भी कैंपस के लिए किसी भी कैंपस में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने अपने जो प्रेफरेंस हैं, कैंपस की प्रेफरेंसेस सेट करनी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद रखते हैं, सेकंड प्रेफरेंस कराची रखते हैं, थर्ड लाहौर रखते हैं, ये पॉसिबल है। उसी मेरिट स्कोर पे, यानी अगर आप उसी टेस्ट के स्कोर पे जो आपने कराची में दिया है, आप किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उस कैंपस के मेरिट स्कोर को मीट कर रहे हैं। सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी किसी सेमेस्टर में? कौन सी इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस स्पेसिफिक नाम से तो कोई कोर्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे, ये गारंटी के आई साथ। थिंक ये एआई रिलेटेड कहना चाहिए, प्रॉम्प्ट। हम्म। So what qualities do you see in students who excel at Fast University? अच्छा, वो नॉलेज वाइज बहुत साउंड होते हैं हमारे जो बच्चे हैं ना, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो इतने साउंड होते हैं कि जो उनके मुकाबले में बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वो compete नहीं कर पाते। यानी उनको इतना अकेडमिकली साउंड किया जाता है कि वो आराम से इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। How should students decide which computing field is right for them? ये आपके एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है बेटा, आप खुद देखेंगे कि कौन सी फील्ड हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उन फील्ड में आप अप्लाई करें। Okay, students, we are taking the final questions now. 1 hour से ऊपर हो चुका है, आप लोग प्लीज आपने कोई फाइनल क्वेश्चंस है वो पूछ लीजिए, so that we can wrap up the session then. So how strong is FAST's alumni network in the industry? नए नेटवर्क हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जर्मनी, इन तमाम जगहों पे हमारे एलमनाई अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और वेल सेटल्ड है। और बाकायदा एलमनाई एसोसिएशन है हमारी, और एलमनाई वाले हमारे जो बच्चे हैं वो करंट बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से आप जब जॉब के लिए हंटिंग कर रहे हो तो एलमनाई आपको बहुत सपोर्ट करता है। So निगहत पूछ रही है कि अगर कोई सेक्शन टेस्ट में छूट जाए तो क्या करें? अच्छा देखें, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे बेटा, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद होता है, आपको ऑन द स्पॉट बताना है कि भाई ये इशू हो गया, टेस्ट में का कोई सेशन मिस हो गया या स्किप हो गया या टेस्ट लॉक हो गया, तो आपने हमारे स्टाफ को बताना है, और वहाँ पे मैं मौजूद होऊंगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी इशू आ रहा है आपका, आपको अनरिजॉल्व अगर रह जाए तो यू हैव टू कम टू मी, इंशाल्लाह हम आपके इशू को उसी वक्त देख लेंगे और रिजॉल्व कर लेंगे। तो फास्ट की सबसे बेस्ट फील्ड कौन सी है? जिसमें आपका इंटरेस्ट है बेटा, सारी बेस्ट फील्ड। पर सेमेस्टर फी इंस्टॉलमेंट में पे हो सकती है? फर्स्ट सेमेस्टर में इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, उसके बाद बाकी के सेकंड सेमेस्टर में आप इंस्टॉलमेंट कर सकते What are the total marks in the test? हैं। 100। ये सवाल रिपीट हो रहा है। जी, हिजाम ने भी रिपीट किया है, वो पूछ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट वाइज बताएं, हिजाम बता सब्जेक्ट चुका हूँ। वाइज नहीं होता है। So what message would you like to give the students who are nervous about the admission process? अच्छा बेटा, एडमिशन फॉर्मेलिटीज आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिए, ठीक है। और अ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको विद इन 24 आवर रिस्पॉन्स दे दें। एडमिशन फॉर्म पे
हमारी एक ईमेल एड्रेस मौजूद है admissions.khi@nu.edu.pk। आपको कोई भी इशू आ रहा है एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त या कोई क्यूरी है जिसके बारे में आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, आप हमें ईमेल कर दें। Within 24 आवर्स हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। सर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इज द फैसिलिटी अवेलेबल, फी? ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया आपको पहले कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो मौजूद है और बच्चे उसको यूटिलाइज करते हैं, पूरे शहर से वो चलती है। जब आप एडमिशन लेंगे तो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर मौजूद है वो वहाँ मौजूद है, उससे आपको मिलना होगा, वो आपको गाइड करेगा। जी बिल्कुल, ये सेशन अपलोड होगा फेसबुक पे, ये सेव रहेगा, आप लोग इसको देख सकते हैं बाद में दोबारा। So I think we should wrap up now. So sir, finally, could you briefly walk us through the admission timeline and important dates that students should keep in mind? यस श्वेत, बेटा हमारे एडमिशन्स की डेडलाइन है 26 जून। ठीक है, 26 जून रात 12 बजे तक हमारे एडमिशन फॉर्म खुले हुए हैं और उससे पहले पहले अप्लाई कर दें। जो बच्चे फाइनेंशियल एड चाहते हैं उनको ऑनलाइन फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करना है बेटा। ठीक है, जो बच्चे ओ लेवल बैकग्राउंड के हैं उनको ओ लेवल की इक्वलेंसी बनवा लेनी है, अगर नहीं बनवाई वो आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे टेस्ट की डेट्स जो हैं वो 29 जून से स्टार्ट हो रही है, तकरीबन 2 वीक्स तक चलेंगे। टेस्ट की डेट आपने खुद सेलेक्ट करनी है, फी जमा करने के बाद आप खुद अपने टेस्ट की डेट सेलेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इशू हो रहा हो, मैंने आपको एक ईमेल एड्रेस बताया है admissions.khi@nu.edu.pk, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई मसला आपका टेस्ट वाले दिन अनरिजॉल्व रहता है तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। मेरा नाम है अब्दुल सईद, सीनियर मैनेजर अकेडमिक्स। आपको फास्ट में कोई भी इशू आ रहा हो जो अनरिजॉल्व हो, आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आप लोगों से इंटरेक्ट करके। So it was a very informative session for all of them, I believe. Thank you so much for joining us. Thank you, students. Take care. Allah Hafiz.